कल। Okay. 5, 4, 17. तो मैं शेयर करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगति भवती नैष्ठिकी। तो आज हम लोग देख रहे हैं 5वें स्कंद के चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 17। द्रव्य देश काल वयः द्रव्यदेशो कालो वयः तथार्थिविदश्चोपचितैः श्रद्धा विविध उद्देश्य सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशम् सर्वैरपि यथा उपदेशम् तत कृत्वा याज Translation and purport by Swami Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Lord हरे कृष्ण Rishabh, प्रभु। Hare Krishna. प्रभु सॉरी, अभी बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए क्लास में से प्रभु जी भी गए हैं और मैं भी अभी रजा छुट्टी लेती हूँ आप लोग से। कल सुबह मिलते हैं प्रभु। सॉरी प्रभु। Okay, okay, Mata. Take care. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। Lord Rishabdev performed all kinds of sacrifices 100 times according to the instructions of Vedic literatures. Thus, he satisfied Lord Vishnu in all respects. All the rituals were enriched by first-class ingredients. They were executed in holy places according to the proper time by priests who were all young and faithful. In this way, Lord Vishnu was worshipped and the prasad was offered to all the demigods. Thus, the functions and festivals were all successful. Purport: it is said, Kaumar Acharit Pragyo, Dharman Bhagavatam Iha, Bhagavatam 7.6.1. A ritual should be performed by young men, even boys, at a tender age in the order for the ritual to be performed successfully. From childhood, people should be trained in Vedic literature, especially in devotional service. In this way, one can perfect one's life. A Vaishnava does not disrespect the demigods, but on the other hand, is not so foolish that he accepts each and every demigod as the Supreme Lord. The Supreme Lord is the master of all demigods. Therefore, the demigods are his servants. The Vaishnava accepts them as servants of the Supreme Lord and he worships them directly. In the Brahma Samhita, the important demigods like Lord Shiva and Brahma, and even the incarnations and expansions of Lord Krishna like Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, and all other Vishnu Tattvas, as well as the Shakti Tattvas like Durga, Durga Devi, are all worshipped by the process of worshipping Govinda with the words Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. A Vaishnava worships the demigods in relation to Govinda, not independently. Vaishnava are not so foolish that they consider the demigods independent of the Supreme Personality of Godhead. This is confirmed in Chaitanya Charitamrita, Ekale Ishvara Krishna Arasam Bhritya. The Supreme Master is Krishna and all other are his servants. Hare Krishna. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव ने जितने भी यज्ञ थे वो 100 बार किए थे, मतलब जितने भी प्रकार के हो यज्ञ, वो हर यज्ञ उन्हें 100 बार किए थे। और वो भी जैसे मतलब वेदों में
उसका जो जैसे वर्णित है वो हिसाब से किया था, और इस प्रकार उन्हें भगवान विष्णु को उन्हें हर तरह से उन्हें संतुष्ट किया था। और फिर कहते हैं, और जितने भी ये जो रिचुअल्स थे इनके, जितने भी यज्ञ थे, ये इसमें ऐसा नहीं कि मतलब पहली बार जो था तो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट यूज किया और फिर बोले और 100 बार करना है तो थोड़ा सा क्वालिटी कम करो, नहीं। ईच एंड एवरी यज्ञ वॉज मतलब एनरिच्ड विद फर्स्ट क्लास, मतलब हर चीज जो था सबसे टॉप मोस्ट जो था उन्होंने यूज किया था। They were executed in holy places according to the proper time by the priests who were all young and faithful. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब जो है एक पवित्र जैसे तीर्थ धाम है वहां पे किया था, सही समय पे किया था। और जो जितने भी वहां पे जो यज्ञ करने वाले जो पुजारी थे, वो ऐसे नहीं थे बूढ़े थे या कमजोर थे, नहीं। दे वर ऑल यंग, बहुत ही मतलब जो थे यंग, यौवन अवस्था में थे और बहुत श्रद्धालु थे। और इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना की गई थी। और फिर उनका जो प्रसाद था वो सारे देवी देवताओं को दिया गया। नॉर्मली यही होता है, जब भी यज्ञ होता है या कुछ ऐसा होता है तो वो भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है और फिर बाद में दूसरे देवताओं को दिया जाता है। और इसीलिए ये जितने भी फंक्शंस थे वो सारे यशस्वी रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कनेक्ट कर रहे हैं कि जो जैसे प्रहलाद महाराज के इंस्ट्रक्शंस है, कुमार आचरित भाग्यम, तो कुमार अवस्था से ही जो है भगवान की जो आराधना है उसको शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो यज्ञ करने वाले जो पुजारी थे, दे वर ऑल यंग और दे वर ऑल डूइंग इन प्रॉपर वे। तो हमें भी जो है भक्ति ऐसा नहीं कि जब बहुत से लोग सोचते हैं कि जब अभी तो मेरा ये पैसा कमाने का टाइम है, मौज मस्ती करने का टाइम है, और जब सब मेरा इंद्रिय तृप्ति हो जाएगा उसके बाद मैं शुरू करूंगा, तो ऐसा नहीं। राइट फ्रॉम द यंग एज, 6 साल की जो आयु से ये भक्ति जो है इसका प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। और यही प्रभुपाद जी इसमें ये कह रहे हैं। और फिर देन ही कनेक्ट्स जो देवताओं को जो ऑफरिंग दिया गया था वो उसके बारे में कह रहे हैं कि एक वैष्णव जो है कभी भी किसी दूसरे देवता का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन उसको पता है कि उनको पोजीशन क्या है और कृष्णा का पोजीशन क्या है, और उसके हिसाब से वो उनकी रिस्पेक्ट करता है और भगवान को ही जो है सुप्रीम मानता है। और इसीलिए जो है वो हमेशा भगवान की सेवा में रहता है, और जितने भी देवी देवता हैं वो उनको जो है भगवान का दास समझता है। देन ही कनेक्ट्स, प्रभुपाद जी यहाँ पे ब्रह्म संहिता कनेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी जैसे शिव जी है, ब्रह्मा जी है, देवी है, हर किसी का एग्जाम्पल है उसमें, जितने विष्णु हैं, कि ये सब जो है ये जो है भगवान के ही मतलब सेवा में रहते हैं ये। और लास्ट में प्रभुपाद जी ये कंक्लूड करते हैं कि एक ही भगवान कृष्ण जो है वो एक ही भगवान है और बाकी जो भी हैं सब के दास हैं। तो ये मैसेज हम लोग को ब्रह्म संहिता में मिलता है और चैतन्य चरितामृत में मिलता है कि भगवान ही एक कृष्ण है और बाकी जो है चाहे जो भी हो, देवता हो, भगवान विष्णु हो, सारे जो हैं जितने उनके एक्सपांशन है वो भी जो है वो उनके सर्वेंट्स हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी तो फिर मतलब इन्होंने क्या क्या है कि महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु उनको भी मतलब उनकी भी पूजा नहीं करनी है, ऐसा क्या? मतलब दे आर ऑल्सो इक्वल टू ब्रह्मा एंड शिवा, ऐसे बोला है क्या नहीं, प्रभु जी? नहीं, दे आर नॉट इक्वल टू ब्रह्मा एंड शिवा, बट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ये मैसेज मिलता है हम लोगों को। मतलब जैसे बोले ना प्रभुपाद जी, वैष्णव किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, एक एंट का भी नहीं करता, तो फिर देवी देवता का कैसे कर सकता है वो? प्रभु जी डिसरिस्पेक्ट नहीं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसरिस्पेक्ट, मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि मतलब हम लोग जब महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु,
मतलब अपने परमात्मा तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जी है, तो मतलब हम लोग तो परमात्मा का मतलब वी से दैट कृष्णा इज इन अस, तो एज परमात्मा, तो विच इज एक्चुअली क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो फिर मतलब वी मतलब विष्णु इज नॉट इक्वल टू कृष्णा, ऐसा मतलब ये बोल रहे हैं क्या प्रभु जी? यस, दे आर एक्सपेंशन। और वो हमने नेक्टर ऑफ डिविजन में कवर भी किया ना, जो इवन विष्णु डजंट हैव द फुल क्वालिटीज, they have Right. only 60 qualities, and only Bhagwan Krishna, he has 64 qualities. Brahma, बराबर, Shiva, they have lesser qualities. ट्रू। लेकिन प्रभु जी फिर अभी हम लोग ऋषभ देव वगैरह को बोल रहे थे, ऋषभ देव तो मतलब विष्णु हैज, मतलब ऋषभ देव केम एज एक्चुअली, मतलब विष्णु केम एज ऋषभ देव, राइट? कपिला मुनि आल्सो के, मतलब विष्णु केम एज कपिला मुनि, तो मतलब स्टिल दे आर, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मतलब वी आर नॉट वर्शिपिंग विष्णु, इज इट? मतलब कृष्णा नहीं, को ऐसा थोड़ा सा नहीं है, कंफ्यूजन प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट वर्शिपिंग विष्णु। जैसे हम लोग नरसिंह आरती करते हैं, तो नरसिंह देव कौन है? ही इज ऑल्सो विष्णु। यहाँ पे ये समझना है हम लोग कि भगवान कृष्ण इज सुप्रीम। हाँ दैट इज द मतलब मैसेज। राइट, गोविंद आदि पुरुषम, हाँ तब हम यस, दैट इज द मैसेज। खाली इतना कि लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ओके, ओके प्रभु जी। Surat Mother Prabhu, Satyaraj Prabhu, you want to add something? Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इसमें जो एक सॉरी प्रभु जी। हाँ, आप बोलिए सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं आपके बाद बोलता हूँ प्रभु जी। सॉरी, मैंने आपका हाथ देखा नहीं, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि प्रभु जी इसमें अभी ये जैसे कि अभी भगवान ऋषभ देव है, ही इज वर्शिपिंग, मतलब अभी जो यज्ञ कर रहे एंड ही सेटिस्फाइंग लॉर्ड विष्णु। सो ये जितना भी वो यज्ञ कर रहे हैं भगवान, ही इज ओनली शोइंग अस, करेक्ट प्रभु? वो हमें दिखाने के लिए, मतलब whom should we satisfying, वो इसके लिए वो कर रहे हैं ना प्रभु? या मतलब वो जो है एक एक्चुअली देखें तो ऋषभ देव भी जो है भगवान के ही एक अंश है, जैसे विष्णु के ही एक अंश है। और वो किसकी आराधना कर रहे हैं? वो विष्णु की कर रहे हैं। तो वी कैन से कि एक एक्सपांशन जो है वो दूसरे एक्सपांशन की पूजा कर रहे हैं। बट ये किसी हम लोग पहले के श्लोकों से कनेक्ट करें तो ही वांटेड टू सेट एन एग्जांपल। उन्होंने दिखाया कि कैसे हम लोग को जीवन व्यतीत करना है। तो वेरी नाइसली यू कॉट दिस पॉइंट सरोदेव प्रभु, कि इट इज जस्ट फॉर सेटिंग एन एग्जांपल। जैसे उसमें वो भी ना यद यद आचरति श्रेष्ठ वाला भी हम लोगों ने कनेक्ट किया था। और ऐसे ही एक सिमिलर श्लोक यहाँ पे भी इसके पहले था, कुछ श्लोक के पहले। तो ही इज सेटिंग एन एग्जांपल कि कैसे वैदिक लाइफ, वर्णाश्रम धर्म में हम लोग को जीना चाहिए। मतलब भगवान होते हुए भी उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, राजा बने, पूरा कंट्रोल किया। और उनके पुत्र भी हुए, 100 पुत्र हुए। उनमें भी उन्होंने बराबर जो था कि 9 जो थे वो एक जो था भागवत थे, 9 जो थे भगवान के भक्त बने। और बाकी जो है वो जो थे क्षत्रिय थे, वो कंट्रोल कर रहे थे वो। तो दैट इज हाउ ही डिवाइडेड, कि मतलब कैसे, मतलब राजा हो तो ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण का काम करे, नहीं, क्षत्रिय है लेकिन क्वालिटी अगर ब्राह्मण का है तो लेट हिम बी ए ब्राह्मण। तो दैट इज व्हाट वी गेट टू लर्न फ्रॉम दिस। हरे कृष्णा। थैंक यू सर्वदेव प्रभु। Thank you so much प्रभु जी। Now Satyaraj Prabhu, now you can address the point. Yeah. हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता में भी यही बताया कि मीन्स लाइक इवन दो ब्रह्मा जी, शिव जी, वो भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं। और वी कैन नॉट, हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि
दयार, क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि भगवान शंकर बोलते हैं तो उनको समान नहीं समझना चाहिए। और इसमें जो पॉइंट मुझे वो वही हाईलाइट करना था प्रभु जी कि एकले ही एक मिनट, एकले कृष्ण आर सर्वभृत्य। एकले ईश्वर कृष्ण आर सबभृत्य। तो बाकी भगवान कृष्ण यही सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी है। बाकी सब तो आज भी इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो भी अभी इसमें सब लोग दास है हम भगवान के। तो जो भी हम लोग रस में है वी शुड बी एक्टिंग एज अ दास्यत्व भाव। हम लोग भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, हम लोग हमेशा दासानुदास के इसमें ही हम लोग को सर्व करना है भगवान को। और हाँ, अभी यज्ञ के बारे में जैसे ही बताया कि उन्होंने 100 बार यज्ञ किया, तो अभी कलयुग का जो यज्ञ है वो है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। सो वी हैव टू परफॉर्म फॉर द प्लेजर एंड फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। हरे कृष्ण। थैंक यू सत्यराज प्रभु। ये समीर प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली वो जो मेरा पुराना जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इसके साथ ही लिंक यही था कि मतलब फिर ऋषभ देव ने विष्णु जी की आराधना क्यों की, मतलब उन्होंने फिर तभी कृष्ण की आराधना क्यों नहीं की प्रभु जी? क्योंकि वो पर्पट जो है, मतलब प्रभुपाद जी जो पर्पट दिखा रहे हैं उसमें उन्होंने क्लियरली दिखाया है कि मतलब गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो फिर मतलब फिर ऋषभ देव ने विष्णु जी की आराधना क्यों की प्रभु जी? हरे कृष्णा। Yeah, if you remember, I think just 2 दिन पहले सर्वदेव प्रभु asked this same question. तो उसमें भी यही निकला था कि जितने भी जनरल पॉपुलेशन हमने देखा था, फॉर जनरल फॉर पीपल इन जनरल ही वाज सेटिंग एन एग्जांपल। तो हर कोई जो है वो टॉप कृष्ण भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि वो अगर एग्जांपल सेट करने जाएंगे तो हर किसी से नहीं होगा वो। तो जो हर कोई कर सकता है और क्या करना चाहिए, दैट इज व्हाट ही इज सेटिंग एन एग्जांपल। ऋषभ देव। ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक्स। क्योंकि जैसे मैं वो हमेशा एग्जांपल देता हूँ ना, एक स्कूल में सारे बच्चे टॉपर नहीं होते। कोई 0 वाला होता है, कोई पासिंग मार्क्स वाला होता है, कोई 50 वाला होता है, कोई फर्स्ट क्लास वाला होता है और कोई 99 वाला होता है। तो 99 वाले को तो मालूम है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम, लेकिन वही सेम जो पढ़ाई है वो 0 वाले को भी देंगे, 35 वाले को देंगे तो उसको बाउंसर जाएगा। तो वो उनके लिए, उनके लैंग्वेज में समझाने के लिए ये जो है वो टीचर जो नीचे लेवल में आता है और उसको सिंपल भाषा में समझाता है। तो दैट इज व्हाट ऋषभ देव इज डूइंग। ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओके, 9:58 हो रहे हैं, तो विल स्टॉप हियर और कल सुबह मिलते हैं हम लोग। कल के लिए क्या अनाउंस हुआ है सत्यराज प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। कल का श्रीमद् भागवतम क्लास ब्रजप्रिया माता जी का है।